حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ جتنے بھی سوال اس ویڈیو کے اندر ہیں وہ سارے ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر ان کے ٹائمنگ کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، تو جس حضرات کا جو بھی سوال ہو وہ اپنی ٹائمنگ پہ کلک کر کے اس مسئلے کو سن سکتا ہے۔ شاکر بھائی نے پوچھا تھا کہ میرے کو نیند میں احتلام ہو گیا اور اگر بھول کر عام طور پر فجر کی نماز اس طرح پڑھ لی گئی ہو، یعنی منی وغیرہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اس کے بعد میرے کو یاد آیا تو میں نے غسل نہیں کیا تھا، غلطی سے اس طرح صف میں شامل ہو گئے، تو نماز کا کیا حکم ہے؟ تو اگر کسی کا احتلام ہوا اور جلد بازی میں بندہ اٹھا یا رات کو غسل نہیں کیا تھا اور اس نے جو ہے وہ بعد میں مسجد کے اندر جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی اور پھر اس کو یاد آیا کہ اس نے غسل نہیں کیا تھا، تو وہ نماز پھر سے پڑھنی ہوگی غسل کرنے کے بعد۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایسا مسئلہ نماز کے درمیان میں پیش آ جائے، یعنی نماز پڑھتے پڑھتے یاد آ جائے کہ ہم نے غسل نہیں کیا، تو اس صورت میں نماز کو توڑ دینا فرض ہے اور توڑ کر غسل کرنے کے بعد پھر سے نماز پڑھے۔ اگر وقت میں گنجائش ہو تو، نہ ہو تو پھر اس کے الگ احکام ہے کہ تیمم کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا، نماز شارٹ طریقے سے پڑھی جائے گی، اس کے الگ احکام ہیں۔ غلام غوثین نے پوچھا تھا کہ سجدے میں پیر کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگانا واجب ہے، تو اگر کوئی بھول سے نہ لگے کسی کا تو کیا سجدہ سہو ہوگا؟ بالکل، نماز میں جو واجبات ہیں اگر اس میں غلطی سے کوئی واجب چھوٹ جائے، جیسے پیروں کی 3 انگلیوں کا لگانا، اگر کوئی نہیں لگاتا غلطی سے چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ شابان علی انہوں نے پوچھا تھا کہ فاتحہ کا کھانا مردوں یا بزرگوں کو پہنچتا ہے یا نہیں؟ اصل میں اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ ہم جو کھانا آگے رکھتے ہیں وہ بزرگوں کو یا جس کا نام کی فاتح ہوتی ہے ان کو پہنچتا ہے، بلکہ ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی نیک کام میں یا تو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے یا کوئی یعنی مالی یا جسمانی عبادت کی جائے، مال کے ساتھ کی جائے یا جسم کے ساتھ کی جائے، اس عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو کھانے کا اہتمام کرنا، اس میں پیسہ خرچ کرنا، پھر اس کو قرآن خوانی کرنا، قرآن وغیرہ پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھنا اور پھر اس کلام کو اصالہ ثواب کیا جاتا ہے، تو وہ پہنچتا ہے۔ کھانا نہیں پہنچتا، اور یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے، لیکن کھانے کو آگے رکھ کے تو بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، تو وہ بھی قرآن ہے، تو کھانا آگے رکھ کے قرآن پڑھا جائے گا، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ پھر اس کو فاتحہ کے کھانے کی نسبت ہو جاتی ہے تو اس لیے اس کا ادب کیا جاتا ہے، ادب عام رزق کا بھی کرنا چاہیے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کھانا نہیں پہنچتا، نہ ہی ایسا ہمارا کوئی نظریہ یا ہمارا کوئی ایسا عقیدہ ہے کہ کھانا پہنچتا ہے۔ جس طرح قربانی کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گوشت نہیں پہنچتا بکرے کا، لیکن پھر بھی قربانی کا حکم ہے۔ عثمان رمضان انہوں نے پوچھا تھا قرآن کی تلاوت پر توجہ رکھنا لازم ہوگا، یعنی قرآن پاک پڑھتے وقت ذہن میں دوسرے مسائل یا دوسری طرف غور و فکر جاتی ہے تلاوت کے دوران، تو کیا تلاوت پہ توجہ رکھنی چاہیے یا ان مسائلوں پہ غور و فکر کر سکتے ہیں؟ اصل میں بہتر تو یہ کہ اگر تلاوت کر رہے ہیں تو پھر تلاوت ہی پہ توجہ رہنی چاہیے، دوسری اس پہ غور و فکر نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس میں وقت کی جو آپ جس وقت تلاوت کر رہے ہیں اس میں ثواب کی نیت یہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ تلاوت کی طرف توجہ رکھے، ورنہ تلاوت کا بھی لطف نہیں آئے گا، آپ کو یہ معلوم بھی نہیں چلے گا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، الفاظوں میں دھیان نہیں رہے گا اور دوسرے مسائل پہ غور کریں گے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ مصلی پر جوتا پہن کے کھڑے ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ویسے لوگوں کے سامنے مصلی پہ جوتا پہن کے کھڑے ہونا، جیسے مسجد وغیرہ میں، تو یہ لوگوں میں بدگمانی کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ اپنے گھر کے مصلی پہ پہن کے کھڑا ہونا یا نہیں ہونا، اس کی صورتیں بن سکتی ہیں۔ اگر یہ کہ جوتا گھر میں ہی پہننے کا ہے، اس میں گندگی نہیں ہے، نیا جوتا ہے، یا فرش کے اوپر اکثر جیسے ایک قسم کی چپلیں ہوتی ہیں وہ فرش پہ ہی پہنی جاتی ہیں، اگر وہ ہے جوتا چپل گھر میں ہی پہننے کا، اس میں کوئی گندگی نہیں ہوتی، بالکل صاف ستھری ہے، تو اسے اگر پہن کے جیسے لیدر کے موزے بھی ہوتے ہیں اسی ٹائپ کا جوتا بھی ہوتا ہے فرش کا، تو اگر اسے پہن کے مصلی پہ کھڑا ہوا جائے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ اسے پہن کے نماز بھی ہو سکتی ہے۔
बहुत सी जूते चप्पलों को पहनकर सजदे में बस वो पैर जो है ना रुकावट नहीं होना चाहिए, इतना सख्त नहीं होना चाहिए, पहना जा सकता है मुसल्ले पे, बस ये गंदगी ना। आम जूते चप्पल जो हम लोग तुम लोग पहनते हैं उसको मुसल्ले पे पहनना दुरुस्त नहीं है। अगर नापाक होगा तो ये हराम होगा, क्योंकि मुसल्ले को नापाक करना हो जाएगा। और अगर नापाक नहीं है तो भी वेद भी है कि धूल मिट्टी का या गंदा जूता नमाज जैसी निस्बत रखने वाली चीज के अदब के खिलाफ है। और मुसलमान और इस्लाम जो मुसलमानों को अदब का बहुत ज्यादा ख्याल करने का हुक्म देता है, तो इस चीज का गौर किया जाए। आफरीन है, इन्होंने पूछा था इशराक चाश्त की जो नमाज है इस तरीके की जो सूरज निकलने के बाद पढ़ते हैं, तो अगर सूरज ना निकले यानी मौसम साफ ना हो, बारिश हो, तो फिर कब पढ़ी जाए। यानी इसका ताल्लुक आपको सूरज देखने के साथ नहीं है कि आपको सूरज देखना है, सूरज देख के पढ़नी है। इसका ताल्लुक सूरज निकलने के वक्त के साथ है। अगर सूरज निकलने का वक्त हो गया तो आप जो है वो नमाज अदा कर सकते हैं, और अगर सूरज निकलने का वक्त नहीं हो तो वो नहीं अदा की जाएगी। ये लाजिम नहीं है कि सूरज निकलने का वक्त हुआ है तो आपको सूरज दिखना चाहिए या सूरज निकलना चाहिए। जैसा कि आपने कहा बारिश है, मौसम साफ नहीं है, सूरज दिखाई नहीं दे रहा, तो भी ये सारी नमाजें जिसका ताल्लुक सूरज निकलने के साथ है वो पढ़ी जा सकती हैं, सूरज चाहे मौसम की वजह से ना निकले। और इरशाद अली इन्होंने पूछा है अगर किसी को बीमारी हो, यानी किसी प्राइवेट पार्ट में किसी को बीमारी हो, तो चेकअप के लिए डॉक्टर के आगे सित्र खोलना पड़ता है, डॉक्टर चेक करता है, तो ऐसी सूरत में तो कोई खराबी नहीं है। अगर डॉक्टर को सित्र दिखाने की इजाजत है, बस ये है कि लेडीज हो तो डॉक्टर लेडीज होनी चाहिए, जेंट्स हो तो डॉक्टर जेंट्स होना चाहिए, प्रायोरिटी इसी को देनी चाहिए जहां तक कोशिश हो। यानी इस मसले को इतना हल्के में नहीं समझना चाहिए कि लेडीज के मसले में जेंट्स डॉक्टर चल जाएगा, तलाश करा नहीं मिला, नहीं, पूरी शिद्दत के साथ आसपास पता करना चाहिए, तलाश करना चाहिए। और अगर इमरजेंसी केस नहीं है तो लेडीज डॉक्टर से लेडीज को, जेंट्स डॉक्टर से जेंट्स को दिखा सकते हैं। तो इसमें सित्र खोला जा सकता है, डॉक्टर के सित्र खोलने की तो इजाज़त है शरीयत में, इसकी कोई हर्ज वाली बात नहीं है, यानी ऐसा किया जा सकता है। नासिर भाई इन्होंने पूछा है कि औरत को हालत हैज में, शायद किसी खातून की आईडी है, औरत को हालत हैज में मेहंदी लगाना, औरत को हालत हैज में मेहंदी लगाने में कोई ख़राबी नहीं है। मेहंदी छुटा के उसका रंग बाकी रहेगा तो उसमें कोई नापाकी पाकी का मसला नहीं है, औरत जो है वो मेहंदी लगा सकती है। लोगों में मशहूर है ख़ासतौर से ख़वातीन में कि हैज़ की हालत में मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, वो फिर पाक नहीं होंगे हाथ जब तक मेहंदी का रंग रहेगा, तो ऐसा नहीं है, मेहंदी जो है वो लगाई जा सकती है। अल अरशबा शमसी, इनका सवाल ये है कि पेड़ पौधों में जानदार मानना क्या इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर है, स्कूल में पढ़ाया जाता है? हाँ, इस्लाम में इसका तसव्वुर तो है, पेड़ पौधों में जान तो होती है, लेकिन इनकी जान हमारी इंसानी जान की तरह नहीं होती। जैसे हम रूह वाले होते हैं, सेंस भी कर सकते हैं चीज़ों को, और इमोशंस भी होते हैं हमारे अंदर। पेड़ पौधों में ये चीज़ें नहीं होती कि वो ज़्यादा चीज़ों को सेंस कर सके हमारी तरह, इमोशंस उनके अंदर हो, फीलिंग्स उनके अंदर हो, बहुत हद तक ये चीज़ें नहीं होती। तो जान उनके अंदर इस एतबार से तो होती है कि उनको सजीव कहा जाए पेड़ पौधों को, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है मानना, इसमें कोई इस्लाम कुफ्र का मसला नहीं है, क्योंकि पेड़ ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं, तो ये भी चीज़ें हैं, तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है। तो कोई मरी हुई चीज़ नहीं बढ़ेगी, उसमें कहीं ना कहीं एक लाइफ है, बस उसकी लाइफ हमारी इंसानों की तरह नहीं है। जैसे आपके जिस्म में भी बालों की अलग लाइफ है, आप जिंदा हो तो बाल ग्रोथ कर रहे हैं, नाखून ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये भी लाइफ है, तभी वो चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इसी तरह पेड़ पौधे हैं, बीज जैसे पेड़ बन रहा है तो उनकी लाइफ है, आगे बढ़ते हैं वो, और इसी तरीके से बस कि उनकी सेंस की पावर वैसी इंसानों की तरह नहीं है, इतना थोड़ा बुनियादी फर्क है रूह वगैरह का। बाकी जानदार मानने में कोई इस्लाम या कुफ्र जैसा मसला नहीं है, जब तक वो कोई खिलाफी शरअ अकीदा ना हो पेड़ों को लेकर। तो सिंपल ये अकीदा है कि हाँ उनमें जान होती है, तो कह सकते हैं कि होती है। गुलाम हुसैन है शायद, इनका सवाल ये है कि पोस्ट ऑफिस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो जिसमें 5 साल इन्वेस्ट करते हैं, 5 साल के बाद मुनाफा मिलता है,
तो क्या ही लेना चाहिए। हाँ, इंडिया में पोस्ट ऑफिस के अंदर भी लोग अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, तो वो बेनिफिट लिया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस के अंदर अकाउंट खुलवाया जा सकता है। राहिल रजवी है, सवाल ये है कि फॉर्म पर सजदे करने का शरई हुक्म क्या है? अक्सर मस्जिदों में फॉर्म है, अक्सर जो मस्जिदों के अंदर फॉर्म है तो वो उलमा की निगरानी में बिछी हुई है। मस्जिद के अंदर इमाम भी है, वो नमाज पढ़ा रहे हैं, तो अगर उस फॉर्म पे सजदा नहीं होता तो फॉर्म मस्जिद में नहीं होती। जनरली ये है कि अगर मस्जिद में इल्म वाला आलिम दीन है तो उसकी निगरानी में वो फॉर्म बिछा हुआ है और लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब वो दुरुस्त है। तो आप देख लें आपके इमाम साहब की इल्मी हैसियत क्या है। अगर वो महज इल्म से बिल्कुल कोरे हैं, उनको ज्यादा मालूमात नहीं है, इसलिए आपको डाउट है, तो ऐसी फॉर्म पर नमाज हो जाएगी जहां बआसानी सजदे में जितना दबाया जा सके फॉर्म दब जाती है। अक्सर जो मस्जिदों में होती हैं, यानी मोटी कालीन टाइप होती है, उसमें हो जाएगी। और अगर कोई ऐसी फॉर्म है कि जिसमें आपको डाउट है तो आपको उसका फोटो खींच के भेजना चाहिए या एक वीडियो क्लिप बना के भेजनी चाहिए उसको दबाने के साथ, ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि उसमें क्या मामला है। और अगर आपको लगता है कि इमाम साहब अच्छे इल्म वाले हैं, आलिम दीन है, तो फिर मसले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो उनके सामने फॉर्म मौजूद है, नमाज वो पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो दुरुस्त होगी। तो ये कुछ सवाल जवाब थे ईमेल के जो काफ़ी लोगों के पुराने थे, तो आप लोग इसको शेयर कर दीजिए जिस शख्स के पास करना चाहते हो, जिसका भी वो सवाल हो, अपनी डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग पे क्लिक करके देख के अपने जवाब को वो सुन सकता है इंशाल्लाह। इसी तरह 10+ वीडियो के अंदर और सवाल आएंगे और 10+ मसाइल की एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनी है चैनल पे, आप उसको देखें। उसमें बहुत सारे सवाल जवाब, छोटी छोटी बातें, मशवरे, आपकी लाइफ से रिलेटेड, मसाइल से रिलेटेड उसमें मौजूद है, जिसको आप सुनेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा, तो उनको भी आप जरूर देखा करें। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से और पाएं सबसे सस्ती SSD और क्लाउड वेब होस्टिंग, लाइट स्पीड और cPanel के साथ। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई